कल स्टूडेंट्स कल आपको ग्राफिंग बताया जिसमें अब तक आपको साइन एक्स कॉस एक्स और टेन एक्स की ग्राफिंग बता चुके हैं एंड हाउ व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स एंड टेन एक्स. Now today's graph of cosec x, you will see what is the domain of cosec x, what is the range of cosec x, and how can you find the graph of cosec x. Because to find the domain and range of the particular trigonometric function, you have to clear knowledge about the graph of that functions. So come to see what is the function graph of the cosec function and how can you draw. So let us see. So x, suppose that x and y is given. x y equal, पहले हम sin x की बात करें, ठीक है, sin x. Just see how can you draw the graph. Here this is the value of x and this is the value of y. You know the value of sin 0 is what? 0. The value of sin 0 is 0 and the value of I think directly I am saying 30 degree 1 by 2, sin 30 is 1 by 2, sin 45 1 by root 2, sin 60 root 3 by 2, sin 90 1. You know very clear about the value of sin x 0, 30, 45, 60, 90. And if I ask about minus 30, if I say about minus 30, you know minus 30 means sine of minus 30, and you know sine of minus theta is what? Minus sine. Is it clear? Sine of minus theta equal minus sine theta. So if you are taking their minus sine minus 30, what will be the value of sine minus 30? Follow? Minus 30 means sine of minus 30 is how much? Minus sine 30 means minus 1 by 2. Similarly, if I say about 45 degree, so minus 45 is how much? Minus 1 by root 2. And if I say about minus 60 degree, so the minus 60 degree is equal to minus root 3 by 2. Similarly, minus sin 90, minus, अगर यहाँ पे minus 90 की बात कर ले, तो value is how much? Minus 1. These are the values corresponding to the angle A of sin x. You will see all the values of sin x. And you know the value of cosec A is just reverse of sin x. If you are going to find x and cosec x, ठीक है, पहले आप इसकी वैल्यू को देख लो x और y एक्सिस पे, फिर इसको हम प्लॉट कर देंगे. देखो जस्ट इसका रिवर्स ले, जस्ट रिवर्स ले लो. 0 मींस 0. अगर sin 0 की वैल्यू at 0 equal 0, then what is the reverse of 0? Reciprocal of 0? Infinite? No, Shreya, infinite. No. 0 का रिवर्स इनफाइनाइट होता है, ठीक है, सही. अगर ये 0 अपॉन 1 है तो ये 0 है, और अगर इसका रिवर्स लेंगे ये 1 अपॉन 0 होगा, दैट विल बी इनफाइनाइट. तो फर्स्ट इट इज इनफाइनाइट. तो एट 0 द cosec x is what? Infinite. Now at 30 degree, if I say about 30 degree, what is the value of cosec 30? अगर sin 30 की वैल्यू 1 by 2 है, तो
cosec 30 की वैल्यू जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, दैट इज 2। एंड इफ आई से about 45 degree, so this is equal to how much? This is equal to how much? root 2। जस्ट इसका उल्टा लिख दो, 62 by root 3। 90 यहाँ पे 90 की वैल्यू 1 होता है और 1 का रेसिप्रोकल भी लेंगे तब भी आपको 1 ही मिलेगा। -30 की अगर बात करें, -30 द वैल्यू ऑफ -30 इज -1/2। इसका रिवर्स कितना हो जाएगा? -2। -45 degree is equal to the square reciprocal of -1/√2 -√2 and -60, the reciprocal of this is -2/√3 or -90, the reciprocal of this is also -1. So these are the values of cosec x corresponding to these value 0, 30, 45, 60, 90, -30, -40, -60, -90। यहाँ तक तो आपको बातें क्लियर है, क्योंकि आपको पता भी है कि वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। एंड एवरीवन नो द वैल्यू ऑफ cosec इज जस्ट रिवर्स ऑफ sin x, तो उसके हमने ऐसे ही लिखा हुआ है। अब इसको हम यहाँ से रफ करते हैं, ठीक है। अब सुनो, बात को समझना। The value of cosec x is infinite at the degree 0। 0 डिग्री पे cosec x की वैल्यू इनफाइनाइट हुआ। तो अगर हम बात करते हैं sin cosec पाई की, देखना अगर cosec पाई की बात करें, भाई sin 90 पे तो वैल्यू 1 था, cosec की भी π/2 पे 1 था। लेकिन अगर π/2 में अगर हम सिर्फ पाई की बात करें, कोसेक पाई की बात करें, तो कोसेक पाई इज जस्ट रिवर्स ऑफ 1/what? sin पाई। बोलो क्लियर है ना? कोसेक इज रिवर्स ऑफ 1/sin पाई और sin पाई means how much? 180 degree। Pi means 180 degree. So this can be written as sin 90 plus 90, clear? Or sin 90 plus theta is what? Cos theta. So if it is cos theta, then 1/cos 90, and at cos 90 the value is 0. So it is equal to 1/0, and then it will again gives the infinite। तो आपने देखा at 0 the value of cosec x is undefined, at pi the value of cosec is also undefined। अब इसके आगे बढ़ते हैं, अगर 3 पाई की बात करें, cosec पाई, चलो पाई के बाद 2 पाई की बात करें, देखते हैं cosec 2 पाई पे क्या वैल्यू। तो cosec 2 pi is equal to 1/how much? sin 2 pi। Clear? Cosec 2 pi is just reverse of sin pi। sin 2 pi is 360 और this can be written as sin pi plus pi। बोलो लिख सकते हैं श्रेया? समझ में आ रहा? चल में हाँ, क्योंकि 2 पाई है ना, 2 पाई को पाई प्लस पाई लिख सकते हैं। अच्छा, अगर समझ में आ रहा है तो sin 180 प्लस थीटा इक्वल, टेल मी, sin 180 प्लस थीटा इक्वल नया कोई बताओ, चलो sin 180 प्लस थीटा इक्वल
ऐसे कैसे तुम लोग एकदम सब भुलाते जा रहे हो। देखो अगर ये देखो ये क्वाड्रेंट है, फिर से यहाँ रिवाइज कर दे रहा है। अगर इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक 90 हुआ, ये 180 हुआ और 180 प्लस इसमें जाएगा। और इन थर्ड क्वाड्रेंट यू नो साइन थीटा इज नेगेटिव। आई वांट इसमें आ जाएगा 180 प्लस थीटा। एंड यू नो इन दिस क्वाड्रेंट साइन इज नेगेटिव, क्योंकि इसमें केवल tan और cot जो है दो ही पॉजिटिव होते हैं। और एक चीज और आपको क्लियर है कि sin 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा में देयर इज चेंज ओनली साइन नॉट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मतलब अगर 180 प्लस थीटा ले रहे हैं, 180 माइनस थीटा ले रहे हैं, 360 प्लस थीटा ले रहे हैं, 360 माइनस थीटा, तो देयर इज नो चेंज इन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, only there is a change in the sign. So sign always remain, but the sign will change here. देखो तो sin you know this is equal to minus sin pi, because why? Because this will lie in the second quadrant, and in the second quadrant third, and in third quadrant sign is negative. And you know sin 180 plus theta equal how much? Minus sin theta. ये 10th में आपको खूब बताया था, आपको याद होना चाहिए। Third sin 180 plus theta is minus sin theta, so it is equal to minus sin pi. क्यों? क्योंकि यहाँ पे sin theta की जगह पे हमने pi दिया है। देखो ये pi means 180 और इस pi का मतलब theta हो गया। तो 180 plus theta will lie in the third quadrant and sin is negative in that quadrant, so here is negative. Now see once again, 1 upon minus sin pi again will be written as pi by 2 plus pi by 2। और लिख सकते हैं, ना? देखो इधर sin pi को sin pi by 2 plus pi by 2, pi by 2 और pi by 2 ऐड करें कितना आएगा? pi आएगा। But you know sin pi by 2 plus pi by 2 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? In which quadrant sin pi by 2 plus pi by 2 will lie? मतलब sin pi by 2 plus theta in which quadrant this one will lie? Tell me students. Any one, first, second, third, fourth किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? माइनस को छोड़ दो, सिर्फ sin pi by 2 plus pi by 2 की बात करो, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? हाँ भाई, तो माइनस हम कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं, तो दिस वन विल लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। एंड यू नो sin 90 प्लस थीटा इक्वल cos थीटा होता है, ठीक है? तो दिस वन विल बी इक्वल टू 1 अपॉन माइनस cos pi by 2 माइनस cos pi by 2। ओनली दिस वन इज माइनस pi cos pi by 2। थोड़ा सा डाउन कर दे रहे हैं। cos pi by 2, so you know the cos pi by 2 is 0 because this one is 90 degree, so minus or 1 upon 0 means minus infinite। तो अभी just you have seen here कि at 0 the value is infinite, at pi the value is infinite, at 2 pi the value is minus infinite। याद रखना इन चीजों को। तो the value of cos is infinite, मतलब undefined at 0, at pi, at 2 pi। अब इधर चलते हैं माइनस के तरफ। Suppose that I am asking sin of minus pi, sin of minus pi, sorry cosec of minus pi।
The cosec is reverse of what? Sine of minus pi. And you know, sine of minus theta equal minus sine theta. So this is again 1 upon minus sine pi. अब just you have find the value of sin pi is बोलो sin pi का वैल्यू कितना? अभी जस्ट फाइंड किए हैं sin pi की वैल्यू कितना होता है? What is the value of 0? Good. तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 1 अपॉन 0 मीन्स माइनस इनफाइनाइट। तो माइनस पाई की वैल्यू जो है इनफाइनाइट हो गया। अब माइनस 2 पाई में देखेंगे cosec ऑफ माइनस 2 पाई। तो इसको फिर से लिखेंगे सेम वही चीज साइन ऑफ माइनस 2 पाई। तो साइन देखो यहाँ पे फिर माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा है। तो माइनस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस साइन 2 पाई। अब 2 पाई साइन 2 पाई की वैल्यू अभी इसके पहले हमने फाइंड किया था कैसे? साइन पाई को पहले लिख सकते हैं, ये माइनस पहले देना है ऐसे 1 अपॉन माइनस साइन पाई प्लस पाई ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई को। और साइन 180 प्लस थीटा विल लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो है निगेटिव होता है। तो पहले से ऑलरेडी इट इज निगेटिव, और अगर इसके वजह से निगेटिव आ रहा है ये कितना आ जाएगा? साइन पाई आ जाएगा। भाई देखो पहले से यहां से ऑलरेडी एक निगेटिव है, और जब साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, then minus minus plus, so this is equal to 1 upon sin pi. अब again here sin pi may be written as sin pi by 2 plus pi by 2, and this is equal to cos pi by 2, and you know cos pi by 2 means 90, or the value of cos 90 is 0, so 1 upon 0 is what? 1 upon 0 is what? Undefined. तो आप देख रहे हो चाहे राइट हैंड में लेफ्ट हैंड में चल रहे हैं, राइट हैंड में चल रहे हैं, तो हर जगह पे पाई के मल्टीपल में वैल्यू जो है अनडिफाइंड आ रही है। बात समझ में आ रहा है? हर स्टेप पे वैल्यू अनडिफाइंड आ रही है कोसेक एक्स मींस। अब इसकी ग्राफिक देखना, x और यहाँ पे ले रहे हैं y इक्वल कोसेक एक्स। वैल्यू बाद में फिट करेंगे, पहले आपको इनडिफाइंड वाली लाइन दिखा दे रहे हैं। अनडिफाइंड वाली लाइन है, दिस इज x एक्सिस एंड y एक्सिस। सपोज दैट दिस इज 0, दिस वन इज 0, और फर्स्ट ऑफ ऑल here put pi by 4 plus pi by 4, मान लो यहाँ पे पाई बाई 4 है, ठीक है ना? तो पाई बाई 4 में फिर अगर ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, बहुत स्मॉल है, थोड़ा सा क्लियर कर दे रहे हैं, आप जूम कर लेना, वैसे ही यहाँ पे जूम किया हुआ है। पाई बाई 4 और पाई बाई 4 में प्लस पाई बाई 4 ऐड करेंगे कितना आएगा? बोलो, पाई बाई 4 में पाई बाई 4 ऐड करेंगे तो कितना होगा? यस स्टूडेंट्स, पाई बाई 2। तो अगला यहाँ पे लिख दिया पाई बाई 2। अब बोलो, फिर पाई बाई 2 में फिर पाई बाई 4 ऐड करेंगे, तो पाई बाई 2 में पाई बाई 4 ऐड किया तो फिर कितना आएगा? नहीं, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4। देखो पहले पाई में 0 में पाई बाई 4 ऐड किया, हाँ, फिर पाई बाई 4 में पाई बाई 4 ऐड किया, पाई बाई 2 आ गया। फिर पाई बाई 2 में पाई बाई 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 3 पाई बाई। देखो अगर पाई बाई 2 और प्लस पाई बाई 4 ऐड किया तो एलसीएम कितना आ गया? 4। तो 2 2 जा 4, 2 पाई प्लस पाई डिवाइडेड बाय 4 इक्वल 3 पाई बाई 4।
तो अगला जो इंटरवल होगा वो 3 पाई बाई 4 का हो जाएगा। अब 3 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 कितना है? हाउ मच? 3 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 इज हाउ मच? टेल मी। 3 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 इज हाउ मच? 3 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 इज हाउ कैन यू 5 पाई बाई 4? कैसे हो सकता है? 3 पाई बाई 4 में पाई बाई 4 ऐड करोगे तो 5 पाई बाई 4 कैसे होगा? See here, 3 पाई बाई 4 और प्लस पाई बाई 4 डिनोमिनेटर is same, so it is what? 4 पाई बाई 4 equal pi, so this is pi। ठीक है, this is pi। now अगर पाई में फिर पाई बाई 4 ऐड करें तो if you are adding pi plus पाई बाई 4 that is equal to, रिप्लाई फास्ट, थोड़ा फास्ट फास्ट रिप्लाई करो। पाई प्लस पाई बाई 4 इक्वल 5 पाई बाई 4। गुड, ये आ जाएगा 5 पाई बाई 4। और फिर अगर 5 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 ऐड करें तो प्लस पाई बाई 4 अगर ऐड करते हैं तो 9 पाई, हाउ इट कैन बी 9 पाई बाई 4? सिर्फ पाई बाई 4 यहाँ ऐड कर रहे हैं ना। हाउ मच? 5 पाई बाई 4 में पाई बाई 4 तो यहाँ से अगर 5 पाई बाई 4 में पाई बाई 4 ऐड करेंगे 3 पाई बाई 5 पाई प्लस पाई 6 पाई डिवाइडेड बाई 4 2 3 जा 6 2 जा, this is equal to 3 पाई बाई 2। so this is 3 पाई बाई 2। अब बोलो 3 पाई बाई 2 में पाई बाई 4 फिर ऐड करें तो कितना आएगा? अगर 3 पाई बाई 2 में पाई बाई 4 ऐड करें तो 3 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 इज हाउ मच? 7 पाई बाई 4। तो दिस इज 7 पाई बाई 4। और फिर 7 पाई बाई 4 में पाई बाई 4 ऐड करें तो अगर 7 पाई बाई 4 में फिर पाई बाई 4 ऐड करें तो कितना आ जाएगा? बोलो 2 पाई। तो ये यहां तक वैल्यू सफिशिएंट है, यहां तक लिख सकते हैं हम। अब इसी के जस्ट इधर लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे पाई बाई 4 लिखा है तो यहाँ लिख दे रहे हैं माइनस पाई बाई 4। ठीक, इधर लिख देते हैं माइनस पाई बाई 2, फिर ये माइनस 3 पाई बाई 4, फिर ये माइनस पाई माइनस 5 पाई बाई 4 माइनस 3 पाई बाई 2 माइनस 7 पाई बाई 4 और माइनस 2 पाई। ये पूरा एक इंटरवल हमने इसलिए दिया है ताकि आप वैल्यूज को रखना समझ सको कि आखिर रियल लाइफ में कैसे नंबर को रिप्रेजेंट करना है। अब अभी देखा था आपने कि जो cosec x अनडिफाइंड था, मतलब y की वैल्यू आ ही नहीं रही थी, वो y की वैल्यू आ नहीं रहा था, वो एक तो इस पे था 0 पर ही नहीं आ रहा है, और दूसरी बात इस पाई पे नहीं आ रहा है, इस पाई पे नहीं आ रहा है। You have seen the value of cosec pi equal what? cosec pi का मतलब पाई पे कितना था? अनडिफाइंड था, क्योंकि cosec pi मतलब 1/sin pi, और जैसे ही sin pi करोगे sin 90 प्लस 90 cos 90 हो जाएगा, 0 होगा, 0 में 1 में 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो इनफाइनाइट आ रहा है। तो एक तो पाई पे अनडिफाइंड था, फिर दूसरा जब आगे बढ़े 2 पाई में भी आपको अनडिफाइंड मिला। ठीक है, इधर भी देखो, एक तो 0 पे और दूसरा माइनस पाई पे अनडिफाइंड मिला था, और इसके बाद माइनस 2 पाई पे आपको वैल्यू जो है अनडिफाइंड मिला हुआ।
तो अनडिफाइंड वैल्यू जहां जहां पे है वहां हमने आपको दिखा दिया कि द वैल्यू ऑफ cosec 2 pi was cosec was undefined at these points। अब बात करते हैं कि वैल्यू जो है cosec x की +1 कहां पे है। देखो एक तो sin पाई बाई 2 पे है, sin पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री और sin 90 की वैल्यू 1 और 1 का रिवर्स भी अगर करेंगे तो 1 होगा। तो सपोज दैट ये आपका 1 है प्लस 1, ये +1 है तो इस पाई बाई 2 पे वैल्यू ये आपको आएगा। सपोज दैट दिस इज द वैल्यू 1, पाई बाई 2 पे दिखा रहे हैं। देखो पाई बाई 2 पे वैल्यू जो है +1 है और अगला जो पॉइंट होगा पाई बाई 2 के बाद अगर आप इधर देखो तो 3 पाई बाई 2 पे वैल्यू चेक करो, देखो कितना आएगा। 3 पाई बाई 2 पे अगर वैल्यू चेक करें तो कितना आएगा। तो 3 पाई बाई 2 पे कैसे फाइंड करोगे, देखो साइन 3 पाई बाई 2 फाइंड कर लो और साइन 3 पाई बाई 2 का जो वैल्यू आएगा उसी का रिवर्स कर देना। देखो कैसे दिखा रहे हैं, जैसे मान लो आपको फाइंड करना है cosec 3 पाई बाई 2, इसको क्या लिखेंगे 1 अपॉन sin 3 पाई बाई, लिखेंगे ना, ऐसे ही लिखेंगे रिवर्स करके। और अगर रिवर्स कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 1 अपॉन sin पाई प्लस पाई बाई। फिर यहाँ पे देखो sin प्लस पाई बाई 2 है तो sin 180 प्लस थीटा, अगेन इट इज थर्ड क्वाड्रेंट और जब थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो ये 1 अपॉन माइनस sin पाई बाई 2 हो जाएगा और 1 अपॉन sin 90 की वैल्यू 1 है, ये -1 होगा तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा -1। यानी आपको cosec 3 पाई बाई 2 की वैल्यू कितना हो गया -1। यानी -1 सपोज दैट ये इधर +1 है, ये इधर -1 है, ये -1 है। तो अगर ये -1 है 3 पाई बाई 2 की वैल्यू इसके सामने यहाँ पे -1 आएगा। बात समझ में आ रहा है, ये वैल्यू आपका 3 पाई बाई 2 पे ये आपकी वैल्यू -1 यहाँ। अब एक सिमेट्री देखना क्या मिल रहा है, पाई बाई 2 के बाद पाई बाई 2 पे +1 हो रहा है, 3 पाई बाई 2 पे -1 हो रहा है। ऐसे ही अगर इधर आ जाए माइनस पाई बाई 2 की बात करें तो माइनस जब पाई बाई 2 करेंगे तो साइन ऑफ कोसेक ऑफ माइनस पाई बाई 2 मींस, देखो कोसेक ऑफ माइनस पाई बाई 2 मींस 1 अपॉन साइन ऑफ माइनस पाई बाई और साइन का माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, ये अगेन मिल जाएगा 1 अपॉन साइन पाई बाई 2 और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, दिस इज माइनस। यानी इस माइनस पाई बाई 2 पे द वैल्यू ऑफ साइन कोसेक माइनस पाई बाई 2 इज -1। यानी ये वैल्यू यहां से ऐसे मिलेगा, यहां पे वैल्यू जो है -1 ये, ठीक, यहां पे इसकी वैल्यू माइनस मिल जाएगा। अब जरा इस पहले इस वाले इंटरवल की ग्राफिंग देखते हैं। देखो 0 पे इनफाइनाइट का मतलब इधर इनफाइनाइट है, इसके बाद से ग्राफ ऐसे घटेगा क्योंकि 5/4 पे √2 आएगा तो इनफाइनाइट से थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर π/2 पे 1 हो गया। अब फिर जैसे ही ये बढ़ाएंगे फिर ये ग्राफ बढ़ेगा और फिर ये ग्राफ बढ़ते बढ़ते इधर ऐसे चला जाएगा, ये इनफाइनाइट। बात समझ में आ रहा है, ये ऐसे ग्राफ जो है बढ़ते हुए चला ये मतलब 1 के ऊपर ही रहेगा। देखो इधर 0 से 0 के 0 एंगल पे इधर इनफाइनाइट की तरफ बढ़ रहा है और इधर पाई पे इधर इनफाइनाइट बढ़। फिर यहां पे देख लो इस वाले कंडीशन में इस पे 1 आया। अब 1 पे अगर हम बात करें तो 1 पे जब 2 पाई पे, देखो इधर 2 पाई पे इनफाइनाइट जाएगा और इधर पाई पे भी इनफाइनाइट जाएगा क्योंकि पाई के बाद अगला 5/2
वो वैल्यू लोगे तो वो -√2 के करीब में आएगा। तो ये π/2 की जब वैल्यू लेंगे, ये ऐसे आपका ऐसे वैल्यू है, ये वैल्यू है ये, ठीक है। इधर से ऐसे ग्राफ मिलेगा आपको। ऐसे ही अगर इधर की बात करें तो यहाँ पे -1 है तो ग्राफ आपको ऐसे दिखेगा। ग्राफ क्लियर है? बोलो, ग्राफ क्लियर है? इसका मतलब एक सिमेट्री अगर ले तो यहाँ पे जो वैल्यू जाएगा मिल करके, अगर ये +1 है ये ऐसे आ जाएगा और इसकी वैल्यू ऐसे आपको दिखेगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ cosec x। आपको एक सिमेट्री दिखा दिया, उसके बाद वैसे ही एज इट इज ड्रॉ कर दिया है। देखो, अगर π/2 पे 1 है, इधर इनफाइनाइट जाएगा और फिर इधर इनफाइनाइट जाएगा। फिर दूसरा केस π/2 पे यहाँ पे 1 है, इधर इनफाइनाइट बढ़ रहा है, इधर इनफाइनाइट बढ़ रहा है। अब डोमेन और रेंज की बात करेंगे तो व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ cosec x। तो डोमेन, अगर डोमेन की बात करें, देखो डोमेन का मतलब x की वैल्यू, और x की वही वैल्यू होती है जिसपे दैट विल बी डिफाइंड। तो डिफाइन किस पे नहीं हो रहा है? 0 पे नहीं हो रहा है, पाई पे नहीं हो रहा है, 2 पाई पे नहीं हो रहा है, माइनस पाई पे नहीं हो रहा है, -3 पाई पे, -2 पाई पे नहीं हो रहा है, यानी पाई का इंटीग्रल मल्टीपल पे डिफाइन नहीं हो रहा है। इसका मतलब डोमेन ऑफ फंक्शन इज r माइनस n पाई और एवरी n बिलोंग्स टू, समझ में आ गया? रियल नंबर में से n पाई का मल्टीपल माइनस कर दो, वही जो है आपका डोमेन नहीं होंगे, बाकी सभी वैल्यूज इसके डोमेन। क्यों? क्योंकि देखो n के जगह पे 0 करोगे तो 0 आ जाएगा, n के जगह पे 1 करेंगे तो पाई आएगा, n के जगह पे 2 करेंगे तो 2 पाई आएगा, n के जगह पे 3 करेंगे तो 3 पाई आएगा, -1 करेंगे तो माइनस पाई, -2 करेंगे तो -2 पाई। यानी इन वैल्यूज से जो cosec x की वैल्यू जो होगी वो अनडिफाइंड होगी, यानी दिस इज द डोमेन ऑफ cosec x। अब रेंज क्या होगा? रेंज ऑफ फंक्शन, अगर रेंज की बात करें, सी व्हाट इज द रेंज? रेंज मींस द वैल्यू ऑफ y। अब वैल्यू जो y की मिल रही है, देखो इधर 1 से ऊपर इधर इनफाइनाइट तक जा रहा है और इधर 1 -1 के इधर इनफाइनाइट जा रहा है, यानी 1 और -1 के बीच की वैल्यू जो है एक्वायर्ड नहीं हो रहा है। 1 और -1 के बीच की जो वैल्यू है वो एक्वायर्ड नहीं हो रहा है। तो 1 और -1 वाले रीजन, लेकिन +1 -1 इसमें इंक्लूड हो रहा है ना, तो आप ऐसे लिख सकते हो, रियल में से इनको सिर्फ माइनस कर सकते हो, -1 और 1। पूरे रियल नंबर्स में ये माइनस। अच्छा, इसका लिखने का दूसरा भी तरीका होता है। व्हाट इज द सेकंड मेथड? r माइनस -1। देखो, r माइनस -1 को ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा तरीका माइनस इनफाइनाइट टू, ये तो माइनस इनफाइनाइट हो गया, और ये आप कर लो -1, लेकिन इसके आगे ये राइट ओपन कर ले, क्लोज कर ले, इस यूनियन और यहां से लेफ्ट क्लोज और राइट ओपन इनफाइनाइट, ऐसे बना देते हैं। ये और करके लिख दे रहे हैं, लिखने का भी तरीका है, क्योंकि बुक में आपको आंसर ये दिया हुआ ऐसे लिख करके, जिसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दिस इज द रेंज, मतलब पूरे रियल नंबर्स में -1 और 1 के बीच की वैल्यूज को छोड़ करके, इंक्लूडिंग -1 all the values of y are, all the values of y are belongs to range. So r minus -1 1 or minus infinite -1 union 1 infinite is the range of cosec function. I hope you are clear about the cosec function. Now what will you do for this? Just you will take copy and pen paper, graph paper also, and we draw the graph of cosec function, and then we try to draw the graph of cosec function. Then you will see exactly how
you can find the domain and range of cosec function. Now there are two cosec functions are remaining, cot x and sec x. We discuss tomorrow. Thank you.